the weather was in several parts of our country. First up, heading straight to Jammu and Kashmir. At least 3 people, including 2 children, have unfortunately lost their lives after a series of cloud bursts triggered flash floods and landslides in Jammu and Kashmir's Ramban district early Sunday. Over 200 houses were damaged, more than 100 people rescued, and several vehicles just swept away as torrential rain wreaked havoc across villages like Seri Bagna and Dharamkund. The Jammu-Srinagar National Highway, the valley's only all-weather road, now remains blocked at over a dozen points between Nashri and Banihal, cutting off critical access and leaving hundreds of vehicles just stranded. In response, the district administration has now ordered closure of all schools, colleges and technical institutes on April 21st. A similar order is also in place across Kashmir Valley. Rescue operations are currently underway with police, SDRF, army and local volunteers braving the weather to reach those who have been affected. In fact, an orange alert remains in effect as rain continues across the region. गाड़ी में मेरे को बंदे लगते हैं, देखो इंडिकेटर तो चला के रखे हैं। उस गाड़ी में मेरे को बंदे लगते हैं, देखो इंडिकेटर तो चला के रखे हैं। So these are the latest visuals on your screen, viewers. Now, the Deputy Chief Minister visited the affected areas and assured residents that the government stands firmly with them. Reacting to the situation, Surinder Chaudhary has said, and I'm going to quote him here, that the situation is bad. On my return, I will submit my report to the Chief Minister. The purpose of my visit is to convey to the people that the government stands with them in this hour of grief. Every attempt will be made to compensate the losses that have been suffered by them. Ramban's Deputy Commissioner outlined the scale of the damage and ongoing efforts. Basirul Haq Chaudhary has said, and I'm going to quote him here, that over 200 to 250 houses have been damaged. NDRF teams are all on ground. All educational institutions will remain closed on April 21st due to weather. Also reacting upon the same, Union Minister Jitendra Singh also praised local authorities for acting swiftly and promised more support if needed. He said, the district administration deserves appreciation for saving several precious lives. Relief is being extended and more will be provided if required. Locals say the disaster struck without warning and recall the destruction it caused. Mohammad Hafiz, a resident of Seri Bagna, recalled, and I'm going to quote the resident here, that at 4:30 a.m. there was a deafening sound, then cries for help. Another villager, Asghar Ali, lost his home but credits responders for saving lives. He said, we lost everything but rescue teams acted fast and saved many. In fact, these are the visuals of how the cloud burst happened and of course the effect post-it. An assessment of the damage is currently underway even as an orange alert remains in place as rainfall continues across the region. देखिए, ये तो इसको त्रासदी कहते हैं। मतलब कि मेरे जीवन काल में तो हमने इस किस्म की भयानक त्रासदी कभी देखी नहीं, और ना सिर्फ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब लॉस ऑफ लाइफ्स का भी बड़ा हमें दुख है, क्योंकि चलो प्रॉपर्टी जो है वो बनती रहती है, लेकिन जिस किस्म से लोगों की जानें गई हैं, मासूम लोगों की जानें गई हैं, और आगे कुदरत के आगे हम कोई बेबस थे। लेकिन अब ये है कि धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल होते जा रही है। जैसी बारिश अभी भी देखिए पूरे इलाकों में पूरा घेर के रखा है, और एडमिनिस्ट्रेशन की और सरकार की यही प्रायोरिटी है कि किसी तरीके से जो है पहले जो है लोगों को बचाया जाए, उसके बाद जो रास्ते बंद हुए हैं उनको खोला जाए, तब जाके जो है रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट होगा। और उसके बाद जो हमारा अभी जो डिप्टी सीएम साहब उमर साहब की डायरेक्शन पर उनको रामन उनका दौरा था, तो उनका भी यही कहना था कि पहले फर्स्ट हैंड सिचुएशन का असेसमेंट करते हैं, उसके बाद जो रिपोर्ट सरकार को पेश की जाएगी, और इसको जो है एक क्लेमिटी जब डिक्लेयर किया जाएगा, ताकि रामबन को जितनी भी जो नुकसान हुआ है उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए इसका जितना भी नुकसान है लोगों की भरपाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ न कुछ जो है जब तभी मिलेगा जब क्लेमिटी डिक्लेयर होगा। यहाँ पे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारे मिलके और सिविल क्यूआरटीज हमारे
हमारी जो है, जो पुलिस के साथ एसोसिएशन है उनका, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एसोसिएशन है। उसके अलावा बहुत खुशी की बात यह है कि सिविल लोग भी हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि कौन है, सभी लोग मिलके जॉइंट एफर्ट्स यहाँ पे लगा रहे हैं। और जिस तरह से दिन को सब ठीक लग रहा था कि अब मौसम ठीक हो जाएगा और हमारा रेस्टोरेशन वर्क जो है काफ़ी प्रोग्रेस पड़े, और शाम तक हम कई जगहों पे हम क्लियरेंस भी कर चुके थे। लेकिन अभी आप सामने देख रहे हैं बारिश दोबारा से शुरू हो गई है, तो हमारा रेस्टोरेशन वर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन मुझे लगता है सुबह तक हम कुछ, अगर मौसम ठीक रहा तो इस वर्क को दोबारा से तेजी लाएंगे। इस समय मैं मौजूद हूँ रामबन में, ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से प्राकृतिक आपदा आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये एक वक्त जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे हुआ करता था और रामबन की मेन बाजार थी, लेकिन जिस तरीके से कल बारिश गिरी और यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसके बाद जो है पूरा मलबा जो है वो रोड पर आ गया। गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मलबे के अंदर फंसी हुई हैं। हालांकि फ़िलहाल यातायात के लिए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। गाड़ियाँ आप देखिए किन हालात में यहाँ पर हैं और अंदाज़ा लगाइए कि जब इस रोड के ऊपर मलबा आया तो उस वक्त हालात किस तरीके की होंगी। कभी देखा ही नहीं, ये पहली बार मैंने देखा इतना फ्लड आया। को 20-25 साल पहले एक बार आया था, उसके बाद यह आज आया। ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे था ना? यहाँ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, ये तो पूरा तबाह हो गया। ये यहाँ से बुरी हालत है। आगे मैं आगे से पैदल आ रहा हूँ। कितने किलोमीटर से पैदल? मैं आया 3 किलोमीटर से पैदल। यही हालात है? यही हालात है आगे तक। कैला मोड़ से लेकर यहाँ तक मैं आया। हाँ बताइए। क्या हुआ है, मतलब गाड़ियों के ऊपर से चल रही है, ऊपर से रास्ता है। अच्छा, उधर आदमी फंसे हुए। अभी अब एनडीआरएफ की टीम अभी है, रात के 2 बजे से उधर आदमी फंसे हैं डिगडोल में। मतलब बेड की गाड़ी के ऊपर आ गया है, उधर बेड भी उसी के नीचे है, मलबे के नीचे, गाड़ी अभी मलबे के नीचे है। आप भी यहाँ से? सर हाँ, ये भी यहाँ से। यहाँ पहले भी आता था फ्लड, आज से पहले आया था 13। ऐसी प्राकृतिक आपदा आया 2 दफा आया यहाँ। शान पहले होटल था, लेकिन इतना नुकसान गाड़ियाँ नहीं, कुछ नहीं। आज तो गाड़ियाँ दब ये पूरी मार्केट कितनी है? कितनी होंगी दुकानें यहाँ से? इस बेल्ट में, इस बेल्ट में कोई 20-22 दुकान। जहाँ पे हम मलबा देख रहे हैं इसके पास भी दुकानें थी? इसके नीचे ये बस ये जो नजर आती है ना ओपनली, दबी कोई नहीं है, ओपन में है। आप यहीं पे थे? क्या हुआ था सर? कितने बजे का वाकया क्या हुआ? मैं यहाँ पे 9 बजे आ गया था। जाम लगाओ तो हमने होटल ले लिया। तो 4 बजे उठ के मैं यहाँ पे जब आया, सुबह के 4 बजे, तो थोड़ा थोड़ा एकदम से जैसे पानी निकलता ना बाहर को, तो ऐसे पानी निकला था थोड़ा थोड़ा। ठीक है। तो मैंने देखा कि पानी निकल रहा है, तो मैं अंदर फैमिली को बताया। मेरा बच्चा था, मेरी माँ थी और है ना, तो बीवी था। हमने जो देखा तो मैं अंदर गया। मैं कहा ऐसे पानी होगा, कोई चक्कर नहीं, कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा। तो दोबारा देखा तो पड़ गया पानी मेरी गाड़ी के पास इतना तरह, जैसे ये थोड़ा थोड़ा आने लगा कुछ मलबा। हमें तो आईडिया नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने होटल वालों को बताई ये चीज़। नीचे आके मैंने शोर मचाया कि मैं क्या बाहर निकलो भाई, कुछ हो रहा है ऐसे। तो उनको बहुत बाज मार के जैसे ही मैं आया ऊपर, दोबारा आ गया कि कमरे में आके बाहर देखा मैंने, फिर वो तब तक तो इतना भर गया ये। अच्छा। तो फिर मैंने सारी फैमिली को उठाया, सारे दरवाजे खटकाए, सारे जितने थे यहाँ पे, जो मेरे को लगा कि हाँ भाई निकलो बाहर। तब तक ये होटल वाले भी आ गए और ये इधर उधर भाग रहे हैं कि कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। क्या हुआ था सर? मैं कैसे बयां करूं सर। आप कहाँ से आए थे? मैं जम्मू से आया था, श्रीनगर जा रहा था सर। यात्री है वो? हाँ जी हाँ जी। मैं श्रीनगर जा रहा था, तो मैंने सोचा कि रात का टाइम है, गाड़ी तो चल नहीं पाएगी, बारिश आ रही थी, 8-9 बजे की बात है। फिर मैंने सोचा कि यहीं से टर्न लेके होटल ले लेते हैं रात को सर। यहाँ पे इसी होटल में थे आप? इसी होटल में सर, रूम नंबर 115 में था मैं। अच्छा, इसी होटल में सर रात का मंजर मैं कैसे अपने मुंह से बयां करूं सर। आप रूह कांप जा रही है सर। मैं कैसे बताऊं आपको वो चीज़ें, वो मंजर। रात को सर 3 बजे बारिश तो आ रही थी, ओले भी गिर रहे थे, इतने बड़े बड़े ओले वगैरह भी गिर रहे थे। उसके बाद अचानक से आवाज़ आई। तो मैं नीचे आया और होटल वालों ने भी बाकी लोगों को निकाला। नीचे आया तो सर नीचे से एकदम पानी स्टार्ट हो गया, पानी स्टार्ट हो गया, ऊपर वाली साइड भरने लगा फ्लोर में। और सर मैं 2nd फ्लोर पे था, आप देख सकते हो। 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर भी मतलब बचा ही नहीं है सर, 2nd फ्लोर। और उसके बाद सर जो लोग थे, हमने दरवाजे दरवाजे तोड़े, बाकी लोगों को अंदर से बाहर निकाला। यहाँ पर कई गाड़ियां हैं जो इस वक्त भी दबी हुई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तबाही का मंजर इस इलाके में आया है और लगातार जो प्रशासन है वो युद्ध स्तर पर अब काम कर रहा है ताकि इस पूरे इलाके को क्लियर किया जा सके।
इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे। यहाँ पे पूरी तरीके से जो प्राकृतिक आपदा है वो यहाँ पर आई है और सेना किस तरीके से यहाँ पर मदद कर रही है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। फर्स्ट एड किट भी यहाँ पर रखी गई है ताकि अगर कोई भी यहाँ पर आता है, कोई माइनर इंजरी होती है तो उसको यहाँ पर फर्स्ट एड किट दी जा सके। उसके साथ भारतीय सेना की तरफ से यहाँ पर जो खाना है वो भी लोगों के लिए रखा गया है, क्योंकि कई घंटे से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है और ऐसे में सेना की अगर बात की जाए तो सेना की तरफ से यहाँ पर नेशनल हाईवे पर जो लंगर है वो लगाया गया है ताकि लोगों की यहाँ पर मदद की जा सके। भारतीय सेना हमेशा से ही आवाम के लिए, लोगों के लिए यहाँ पर बढ़ चढ़कर आगे आती है ताकि लोग जो हैं उनकी थोड़ी सी मदद जो है वो यहाँ पर की जा सके। कई घंटे से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पूरी तरीके से बंद है और ऐसे में सेना की तरफ से यहाँ पर जो लंगर है वो भी लगाया गया है और यहाँ पे जो फर्स्ट एड किट है वो भी यहाँ पर लगाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सेना के जवान जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं। फर्स्ट एड किट जो है वो यहाँ पर दी गई है क्योंकि कई घंटों से लोग जो है वो पैदल भी चल रहे हैं इस हाईवे पे, क्योंकि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है, प्राकृतिक आपदा आई है। ऐसे में सेना की प्राथमिकता ये है कि लोग जो है वो अगर यहाँ पर फंसे हैं, कई घंटों से फंसे हैं, तो उनकी यहाँ पर थोड़ी सी मदद की जा सके। And as Jammu and Kashmir braces for more severe weather, public has only been warned to stay indoors.